آقا امام حسین کا ایک چھوٹا سا قافلہ اپنے خیمے میں موجود تھا۔ میرے آقا امام حسین نے حضرت عباس علمبردار سے رات کے تاریکی میں کہا کہ یہ عباس علمبردار جاؤ اور جا کر کے عمر بن سعد کو بلاؤ، اس سے کہو کہ حسین تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں حضرت عباس علمبردار جاتے ہیں اور عمر بن سعد سے حسین اعظم کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ عمر بن سعد اپنے 20 سواروں کے ساتھ امام حسین سے ملاقات کے لیے چل دیتا ہے۔ ادھر سے آقا امام حسین اپنے 20 سواروں کے ساتھ چلتے ہیں اور ایک سنسان جگہ پر جا کر کے امام حسین عمر بن سعد سے باتیں کرتے ہیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں عمر بن سعد تم جانتے ہو کہ اس زمین پر میرے علاوہ کوئی نواسے رسول موجود نہیں ہے۔ اے عمر بن سعد تم جانتے ہو میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کے تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، جس کے ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اے عمر بن سعد اگر تمہیں ہمارا آنا یہاں منظور نہیں ہے تو یا تو ہمیں واپس جانے دیا جائے اور یا تو پھر ہمیں ایران جانے دیا جائے، ہم جا کر کے دمشق جا کر کے اور ابن زیاد سے براہ راست بات کر لیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ تو عمر بن سعد ہے جب امام حسین کے اس بات کو سنتا ہے، سننے کے بعد اسے تسلی حاصل ہوتی ہے کہ لگتا ہے ایسے کہ دونوں پارٹیوں میں صلح ہو جائے گی۔ عمر بن سعد ایک خط لکھتا ہے ابن زیاد کو اور سارے ماجرا کہہ سناتا ہے کہ امام حسین ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے جنگ سے صلح کرنے والے ہیں۔ ابن زیاد جب اس خط کو دیکھتا ہے تو ابن زیاد کے دربار میں شمر جلجوشن جسے کہا جاتا ہے، وہ بڑا بدبخت انسان تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ابن زیاد کو ورگلایا اور کہا کہ ابن زیاد یہ بتاؤ تم عمر بن سعد کو حسین کا سر لانے کے لیے بھیجے ہو یا عمر بن سعد کو بھیجے ہو کہ وہ وہاں جا کر کے صلح کرے؟ یاد رکھو آج وہ امام حسین، یہ شمر جلجوشن کہتا ہے کہ آج امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچ چکے ہیں، ان پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اگر حسین کے لیے آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم چاہیں گے تو حسین سے بیعت کرا لیں گے اور یا تو حسین کے سر کو کاٹ ڈالیں گے، یہی ہمارے پاس اچھا موقع ہے۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے، یہاں سے جانے کے لیے کہہ دیں گے تو پھر آگے ہمارے لیے مصیبتوں کا پہاڑ بن جائے گا، آگے سے حسین کے قافلے والے ہم پر بھاری پڑ جائیں گے۔ جب اس بھڑکاؤ جملے کو سنتا ہے ابن زیاد تو وہ فوراً اپنے ایک قاصد کو بھیجتا ہے، ایک شمر جلجوشن سے کہتا ہے جاؤ ایک خط لے کر کے تم جاؤ، اور اس خط میں لکھ دیا تھا ابن زیاد نے کہ عمر بن سعد ہم نے تمہیں لشکر دے کر کے بھیجا ہے، یا تو حسین کا سر لے کے آؤ یا تو حسین سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لے۔ اگر یہ دونوں نہیں ہو رہا ہے تو پھر تم اگر نہیں کر سکتے تو لے کے حکومت سے برخاست کر دو۔ میں شمر جلجوشن کو یہ خط دے کے بھیج رہا ہوں اور اسے تاکید کر رہا ہوں، اگر ایسا نہ کیے تو شمر جلجوشن عمر بن سعد سب سے پہلے وہ تمہارے گردن کو اڑائے گا۔ یہ خط دے کر کے وہ بھیجتا ہے، وہ بدبخت انسان آتا ہے اور خط کو پیش کرتا ہے، پیش کرنے کے بعد کہتا ہے عمر بن سعد اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے یا تو حسین سے یزید کی بیعت لے لو اور یا تو حسین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر ایسا تم نہیں کر سکتے تو شمر نے کہا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو عمر بن سعد تم اپنے لشکر کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تب عمر بن سعد نے کہا تھا تو نے بڑی بات کہہ دی ہے، ہم نہ
दौलत छा चुकी होती है, वो शिमर से कहता है तुम घबराओ मत, हम हुसैन से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हम हुसैन से मुकाबला करेंगे। मेरे मिल्लत के लोगों, आप जरा गौर करें, वो अमर बिन साहब कहता है हम हुसैन से लड़ने के लिए तैयार हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अब उस मैदान में उस जगह पर अमर बिन साद मौजूद है, उसका काफिला है, हुर बिन यजीद वो भी मौजूद है, उसके काफिले के लोग मौजूद है। ये वही हुर है जिसने इमाम हुसैन को करबला में रुकने के लिए मजबूर किया था। अब दिल ही दिल में वो सोच रहे हैं हुर कि काश ये सारा माजरा जो हो रहा है, अगर मैं हुसैन को करबला में रुकने पर मजबूर न किया होता तो हमें आज ये मंजर देखने को न मिलता। तारीख शाहिद है, उसी दौरान में उसी हुर की एक छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची ख़ैमे हुसैन की तरफ चली जाती है। जब ख़ैमे हुसैन की तरफ वो छोटी सी बच्ची जाती है, हजरत ज़ैनब, वो हजरत ज़ैनब है जिनके बारे में कहा जाता है कि जब तक हुसैन दुनिया में मौजूद थे लोग हुसैन का नारा लगाते थे, लोग हुसैन को सिपह सालार किया कहा करते थे। लेकिन तारीख शाहिद है कि जब इमाम अली मकाम को करबला में शहीद कर दिया गया है तो इमाम हुसैन के किरदार को अगर करबला के मैदान में किसी ने निभाया है तो वो हजरत ज़ैनब है। मेरे मिल्लत के लोगों, वो हजरत ज़ैनब है। जब देखती है कि एक बच्ची है जो दौड़ती हुई चली आ रही है ख़ैमे हुसैनी की तरफ, ख़ैमे हुसैनी की तरफ आकर जब पहुंचती है वो बच्ची, हजरत ज़ैनब पूछती है बच्ची पता तू कौन है, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? वो बच्ची कहती है मैं सामने वाला जो लश्कर मौजूद है उस लश्कर में जो सरदार है जिसका नाम हुर है मैं उसकी बेटी हूँ। हजरत ज़ैनब उस बच्ची को अपने सीने से लगाती है और उसके बाद में हजरत ज़ैनब कहती है बच्ची मुझे माफ करना, आज हमारे खेमे में पानी मौजूद नहीं है कि हम अपने आए हुए मेहमान का इस्तकबाल कर सके, अपने आए हुए मेहमान का इस्तकबाल कर सके। हजरत ज़ैनब फरमाती है ये बातें कह रही थी, इतने में क्या देखती है कि हजरत सकीना आ रही है। हजरत सकीना पर जब नजर जाती है हजरत ज़ैनब देखती है कि हजरत सकीना अपने कानों में बालियां पहने हुई है। हजरत ज़ैनब फरमाती है ए सकीना करीब आओ। हजरत सकीना आती है, अर्ज करती है जी फूफी जान मैं हाजिर हूँ। हजरत ज़ैनब फरमाती है ए सकीना तुम्हें मालूम है, हमें सबको मालूम है कि हमारे घर में हमारे नबी का ये तौर तरीका रहा है कि जब कोई हमारे घर में आया करता है तो हम उसका इस्तकबाल किया करते हैं, हम उसकी मेहमान नवाजियां किया करते हैं। लेकिन आज हमारी किस्मत इस तरीके से है कि आए हुए मेहमान को एक कतरा हम पानी नहीं पिला सकते हैं। हजरत सकीना फरमाती है ए फूफी जान तो फिर क्या किया जाए? हजरत ज़ैनब फरमाती है सकीना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सकीना तुम अपने कान में बालियां पहने हुई हो, इन एक एक बालियों को निकाल करके हमें दे दो, हम इस बच्चे को हदिया कर देंगे। वो हजरत सकीना है अपने बालियों को निकालती है और निकालने के बाद हजरत ज़ैनब को देती है। देने के बाद में हजरत ज़ैनब उस बच्ची को देती है और दे करके एक जुमला कहती है कि मेरी बेटी आज तुम करबला में मुझसे मुलाकात की है, ए बच्ची आज तेरा इस्तेमाल तो मैं नहीं कर सकी, लेकिन अगर मैं जिंदा रही और तू मेरे नाना के मदीने में आएगी तब तुझे पता चलेगा कि खानदाने हुसैन आने वाले मेहमान का किस तरीके से इस्तेमाल किया करना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आशिकाने हुसैन नौजवान कमेटी, नारे तकबीर। बहुत अच्छे भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना भाई, बहुत अच्छे। हजरत ज़ैनब फरमाती है बेटी तुम एक बाली इस बाली को लेकर के जाओ और अगर हम जिंदा रहे तुम हमारे मदीने में आओगी तो देखना अहले बैते अतहार किस तरीके से अपने मेहमान को इस्तकबाल करते हैं। वो बच्ची है, बच्ची खेमे हुसैनी से निकलती है और हुर के खेमे की तरफ चली जाती है। हुर के खेमे की तरफ जब जाती है
तो हुर जब देखता है कि उसकी बेटी आ रही है, हुर ने अपने बेटी को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि बेटी, अभी तक जब तक तुम मेरे काफिले में थी, तेरे कान में ये बालियां नजर नहीं आ रही थी, ये बालियां तुम्हें कहां से मिल गई? तो वो बच्ची कहती है, वो जो सामने वाला खेमा लगा हुआ है, उस खेमे में इतने अच्छे लोग मौजूद हैं कि बड़े अच्छे से अदब एहतराम से हमारा इस्तकबाल किया है। उनके पास खाने के लिए कोई सामान नहीं है, उनके पास पीने के लिए कोई सामान नहीं है, पर तब उन्होंने हमें उठा करके एक बालियां दी है। साथ साथ में ये भी कहा है कि अगर तुम हमें मदीने में मिलना तो देखना कि खानदान हुसैन के लोग किस तरीके से इस्तकबाल करते हैं। और जब इस जुमले को सुनता है कांप जाता है, दिल ही दिल में सोचता है, अपने बच्ची से कहता है, बच्ची आज तो ये माजरा होने वाला है, आज तो ये करबला में मंजर पेश आने वाला है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं हुसैन को करबला के मैदान में रुकने पर मजबूर न किया होता तो शायद आज ये माहौल न होता। ए बच्ची, मैं सोच रहा हूँ अगर मैं हुसैन के कदम में जाऊं तो हुसैन मुझे माफ करेंगे या नहीं करेंगे। वो ये बात सोच सोच के कांप रहा होता है। बच्ची कहती है, अरे बाबा, जिस खानदान के बच्चियों का यह आलम है कि जो अपने आए हुए मेहमान को कोई चीज खाने के लिए ना हो, फिर भी वो अपने कान की बालियां उतार के दे सकती है, मुझे यकीन है, जाओ हुसैन के कदमों में अपने सर को रखो, मुझे उम्मीद है कि हुसैन आजम तुम्हें मायूस नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें माफ करके और मैदान महशर में तुम्हारी शफाअत करके और तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाएंगे। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। वो हजरत हुर है, जब इस जुमले को सुनते हैं, सुनने के बाद में चल देते हैं खेमे हुसैनी के जानिब, खेमे हुसैनी के जानिब बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद में जाकर के आका हुसैन से मुलाकात करते हैं, माफी तलब करते हैं और कहते हैं, आका हुसैन, आज जो कुछ भी हुआ है, जो हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आप जाना चाहते थे यहाँ से वापस, अगर मैं जाने दिया होता तो ये मंजर पेश नहीं आता। ए आका हुसैन, हमें माफ कर दिया जाए, हमें माफ कर दिया जाए। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ए हुर, ये बताओ तुम जानते हो हुर का माना क्या होता है? हुर कहता है, ए आका हुसैन, आप बेहतर जानते हैं। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, हुर के माने होता है आजाद। ए हुर, तुम दुनिया में भी आजाद हो और मैदान महशर में भी आजाद रहोगे। ए हुर, तुम दुनिया में तमाम मालो दौलत से आजाद हो, लेकिन ए हुर, जब तुम क़िमे हुसैनी से आज माफी तलब करने के लिए आए हो तो मुझे इस तरीके से मैं तुझे माफ कर रहा हूँ कि जा, आज तक के तू दुनिया में आजाद था, लेकिन आज के बाद तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया जाए। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हजरत हुर है, जब इस जुमले को सुनते हैं, उसके बाद आका हुसैन फरमाते हैं, हुर, घोड़े से नीचे उतर आओ। हजरत हुर फरमाते हैं, या हुसैन आजम, अब हुर घोड़े से नीचे उस वक्त उतरेगा जब इसके गर्दन से इसके सर को जुदा कर दिया जाएगा। हुसैन, हुर अब जमीन पर उस वक्त आएगा जब या तो शहीद हो जाएगा तब जमीन पर आएगा। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, जैसे हुर जैसे तुम्हारी मर्जी। हुर है जो अपने घोड़े के सींग को कसता है और उस खेमे के जानिब पहुंच जाता है और लोगों को मुखातब करके कहता है, अमर बिन साद और उसके लश्करों, सुनो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नवाज़े रसूल को 300 से ज्यादा खुतूत दे करके भेजा गया है। जब ये तुम्हारे जमीन पे आ गए हैं, तुम इन्हें कैदी बना लिए हो, उसके बाद इन पर पानी बंद कर दिए हो, ये तुमसे लड़ने नहीं आए हैं। अगर तुम्हें इनका आना मंजूर नहीं है तो इन्हें वापस भेज दो, ये जाने के लिए तैयार है। हुर जब इस जुमले को सुनते हैं तो वो शिमर जो होता है बदबख्त, वो उस बात में मुदाखलत डालता है और हाल ये होता है कि उस लश्कर के तरफ से हमले होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरे मिल्लत के लोगों, अभी जंग का आगाज नहीं हुआ था, इस
इसलिए हजरत हुर फिरवातस हुसैन के खेमे की तरफ पलट आते हैं, क्योंकि अभी जंग का आगाज नहीं हुआ है। अब रात की तारीकी है, रात की तारीकी हो जाती है। रात की तारीकी में हजरत इमाम हुसैन है, खेमे के दरवाजे पर तलवार का सहारा लेकर के टेक लगा करके बैठे हुए हैं। इतने में नींद आ जाती है आपको, और तमाम अज़वाजे मुताहरात, तमाम खेमे के लोग साथी जो थे वो अंदर मौजूद थे। रात के तारीकी में घोड़ों के लश्करों के आने की आवाज सुनाई देती है। हजरत ज़ैनब जाती है, जाने के बाद अपने भाई हुसैन को जगाती है और कहती है, भाई ऐसा लग रहा है कि दुश्मनों का लश्कर हम पर हमला करने के लिए आ रहा है। हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं, हजरत अली अकबर से, हजरत अब्बास नंबरदार से कि अब्बास नंबरदार जाओ और जा करके देखो ये कौन सा काफिला आ रहा है। जब जा करके देखते हैं तो वही अमर बिन साद का काफिला है जो हुसैन के खेमे पर हमला करने के लिए आ रहा है। इमाम हुसैन कहते हैं, अब्बास जाओ, अब्बास जाओ, अमर बिन साद के लश्कर से कह दो, अमर बिन साद से कह दो कि आज की रात हमें मोहलत दे दे, आज की रात हमें वक्त दे दे, ताकि हम रात भर अल्लाह की दिल खोल करके इबादत कर ले, दिल खोल करके अल्लाह की इबादत कर ले। हजरत अब्बास नंबरदार है, जाते हैं और कहते हैं कि आज की रात मोहलत दिया जाए, हम सुबह तुम्हारे मुकाबले के लिए तैयार हैं। इजाजत हो जाती है। मेरे मिल्लत के लोगों, रात की तारीकी होती है। अब कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, नौ मुहर्रमुल हराम की रात है, कोई रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाया है। मेरे मिल्लत के लोगों, आज का दौर होगा, आज का जमाना होगा, तो अगर हमें पता होगा कि कल सुबह हमें जंग के लिए जाना है, तो हमारा हाल ये होता कि हम रात के तारीकी में अपने साजो सामान को तैयार करते, अपने उस लड़ने के लिए जो हथियार होते उसकी तैयारियों में मुब्तला रहते, लड़ने की तैयारियां करते, अपने लश्कर को इकट्ठा करते। लेकिन ये खेमे हुसैनी है, देख खुदा पर कितनी उम्मीदें रखने वाली ये जमात है। रात की तारीकी है, खेमे हुसैनी में कुरान की तिलावतें की जा रही है, रात की तारीकी है, खेमे हुसैनी में तस्बीह पढ़ी जा रही है, रात की तारीकी है, खेमे हुसैन में नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, और अपने एक जगह पर में अल्लाह की इबादतों में मशगूल है। मर्द जो है वो अल्लाह की इबादतों में मशगूल है। आका इमाम हुसैन है, रात की ताज़ी पहर गुजर जाती है। मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अली अकबर आओ और जाकर के मैदान का जायजा ले लो। रात की तारीकी में हजरत अली अकबर जाते हैं मैदान का जायजा लेने के लिए, उस मैदान को देखने के लिए जाते हैं। देख करके जब वापस लौटते हैं तो मेरे आका हुसैन ने पूछा था, ए अली अकबर तुम मैदान करबला में गए थे, उसके नक्शे को देखने के लिए, ये बताओ रात के तारीकी में तूने क्या देखा है। तो हजरत अली अकबर फरमाते हैं, ए बाबा जान हमने देखा है कि एक नकाबपोश औरत है जो अपने आंचल में वहां के कंकरियों को उठा करके अपने दुपट्टे में इकट्ठा कर रही है। अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के लोगों, हजरत हुसैन फरमाते हैं, ए अली अकबर तुम्हें मालूम है वो कौन औरत है जो नकाबपोशी के हालत में करबला के जमीन से कंकरों को चुन करके अपने आस्तीनों में रख रही है, अपने पास में रख रही है। अली अकबर फरमाते हैं, मेरे बाबा जान मुझे नहीं मालूम है। तो हजरत हुसैन फरमाते हैं, वो कोई और नहीं है बल्कि वो मेरी माँ फातिमा है। आज वो करबला के मैदान में आई है और वो कंकरियों को चुभ रही है। उसकी वजह यही है ताकि मेरी माँ फातिमा चाहती है कि कल करबला के मैदान में जब मेरे हुसैन के गर्दन पे छुरी चले, मेरा हुसैन करबला के जमीन पर गिरे, तो कहीं ऐसा न हो कि जमीन की कंकरी मेरे हुसैन के जिस्म में छिड़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने हुसैन नौजवान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना भाई, वाह वाह। हजरत माँ हुआ करती है। आज हमारे माओ का हाल ये है कि अगर उनका बच्चा एक
केले के छिलके पर उसका पैर फिसल करके वो गिर जाए बच्चा, तो माँ का कलेजा दहल जाया करता है। अरे मेरे मिल्लत के लोगों, जरा सोच, फातिमा के दिल पे क्या गुजर रहा होगा। वो तो करबला के मैदान में एक छोटी छोटी कंकरियों को बीन रही है, कंकरियों को अपने पास में इकट्ठा कर रही है, बस इस वजह से कि हुसैन जब जमीन पर गिरे तो कहीं ऐसा ना हो हुसैन के जिस्म में कंकरियां न चुभ जाए। मेरे मिल्लत के लोगों को करबला का मैदान है, वो करबला का मंजर है। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि जब रात की तारीकी होती है, सारे लोग इबादतों में मसरूफ हुआ करते हैं। जब सुबह की सफेदी नमूदार होने वाली होती है, वो 10 मुहर्रमुल हराम की वो तारीख वो सुबह नजर आने वाली होती है, जो सुबह में खानदाने हुसैन के एक फर्द को कुर्बान किया जाएगा। मेरे मिल्लत के लोगों को किसी कयामत से कम नहीं होगा। वो मंजर जरा करबला के मंजर को अपने निगाहों में बसाओ, वो कैसा मंजर रहा होगा, वो कैसी सुबह होने वाली होगी, वो कैसा सूरज निकलने वाला होगा, जो 10 मुहर्रमुल हराम को जो सूरज निकला होगा, करबला के मैदान में क्या मंजर रहा होगा। मेरे मिल्लत के लोगों, मेरे आका हुसैन है, फज्र के अजान के लिए हजरत अली अकबर से कहते हैं, ए बेटा, जब तक के मदीने में नाना मुस्तफा अगर किसी से कोई चीज कहा करते थे तो वो सबसे पहले हजरत हसन से कहा करते थे, इसलिए कि हजरत हसन बड़े हुआ करते थे। और नाना जब किसी काम के लिए इजाजत दिया करते थे, जब कोई कार्य खैर के लिए इजाजत दिया करते थे तो हसन से कहा करते थे। लेकिन ए मेरे बेटे, आज मेरा भाई हसन करबला में मौजूद नहीं है। ए मेरे बेटे, तुम ही मेरे सबसे बड़े साहबजादे हो, जाओ अब जा करके फजर की अजान दे दो। अल्लाह अकबर, फजर की अजान होती है, नमाज पढ़ी जाती है। मेरे मिल्लत के लोगों, अब वो वक्त आने वाला है जिस वक्त में जंग शुरू होने वाली है। मेरे मिल्लत के लोगों, अमर बिन साद है जो अपने लश्कर को लेकर के खेमे हुसैनी की तरफ बढ़ रहा है। हजरत मोहतरम इमाम हुसैन ने अपने खेमे के पीछे अपने साथियों के जरिए से अपने खेमे के पीछे एक गड्ढा खुदवा करके और उसमें आग जला दिया था ताकि कोई पीछे से खेमे पर हमला न करने पाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, जब वो तारीख आती है, वो वक्त आता है, तो अमर बिन साद का काफिला जब आता है, और आने के बाद में अमर बिन साद अपने एक लश्कर से कहता है, एक से कहता है कि वो झंडा जो है वो सिपे सालारी का जो झंडा है वो झंडे को आगे लाया जाए। 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है, सिपे सालारी के झंडे को जो अमर बिन साद आगे बढ़ाता है और उसके बाद में अपने तीर का निशाना खेमे हुसैनी की तरफ बढ़ाता है। मेरे मिल्लत के लोगों, खेमे हुसैनी की तरफ अमर बिन साद ने सबसे पहला तीर चलाया था और चलाने के बाद में उसने अपने काफिले वालों से कहा था, काफिले वालों देख लो, हुसैन के खेमे पर सबसे पहले हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो मैं अमर बिन साद है। अमर बिन साद है जो सबसे पहले हमला किया है। उसके बाद में अब खेमों की तरफ हमला शुरू हो जाते हैं, दोनों तरफ से जंगो जिदाल शुरू हो जाते हैं। मेरे मिल्लत के लोगों, थोड़ी देर इस तरीके से चलती है, उसके बाद अब क्या होता है कि जब हुर देखता है, वही हुर जो खुद थोड़ी देर पहले हुसैन के कदमों से जाकर के मिला था, अब वो हुर है जो लश्करे यजीद की तरफ आ जाते हैं, अमर बिन साद के लश्करों के सामने आ जाते हैं और लोगों को फिर वही जुमला कहते हैं, ऐ लोगों, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अपने हाथों से नवासे रसूल का खून मत करो। लोगों को उन लोगों के ऊपर दिलों पर पत्थर बन चुका था, वो किसी के बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो हजरत हुर होते हैं जो उन काफिलों पे हमलावर हो जाते हैं, उनके लश्करों के अंदर घुस जाते हैं और दुश्मनों को काटते पीटते चले जाते हैं। चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, हजरत हुर अकेले हैं जो मैदान करबला में दुश्मनों से लड़ते चले जा रहे हैं। उन्हीं लश्करों में से एक ने कहा था, ऐ हुर, ये बताओ, आज से पहले हमने तुम्हें कभी ऐसा जंग करते नहीं देखा, कभी तुम्हें ऐसी तलवारें चलाते हुए नहीं देखा। ऐ अमर, हुर, आज तुम्हें क्या हो गया है, जिस तरीके से बहादुरी के साथ तुम तलवारें चला रहे हो। तो हुर ने कहा, जवाब दिया था, ऐ लोगों, कान खोल करके
رسالت عاشقان حسین نوجوان کمیٹی نعرے تکبیر نعرے رسالت. بہت اچھے بھائی ماشاءاللہ. میری ملت کے لوگوں، انہی لوگوں میں سے کہا تھا کہ حر، آج تک کہ ہم نے تمہیں اس طریقے سے اس بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، آج تم کیوں ایسا لڑ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو تھا میں وہ بھٹکے ہوئے راہ پر تھا، لیکن اب حسین سے مل کر کے ہمیں جنت کا راستہ مل گیا ہے، ہمیں اب جنت کا راستہ مل گیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جنت کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا ہے. معزز سامعین کرام، بالآخر ہوتا یہ ہے کہ حضرت حر کو ان یزیدی لشکروں نے چاروں طرف سے گھیر کر کے اور حضرت حر کو شہید کر دیا جاتا ہے. میرے ملت کے لوگوں، آپ کے ساتھ بہت سارے امام حسین کے ساتھ بہت سارے اور جانثار لوگ گئے تھے جو امام حسین کے ساتھ قافلے میں گئے تھے. ایک بات دیگرے ہوتا یہ ہے کہ یزیدیوں کے لشکر کی طرف سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ادھر سے میں حسینی سے کچھ جوان نکلتے ہیں اور جا کر کے ان لشکروں سے مقابلہ ہوتا ہے. المختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت حسین اعظم ہے، جب تک کہ امام علی مقام کا ایک بھی عاشق کربلا کے میدان میں بچا ہوا تھا، اس وقت تک کے حسین کے خاندان کے کسی ایک بچے پر ایک چھوٹا سا بھی خروچ نہیں آنے دیا تھا. ان لوگوں نے سارے تیر و تلوار کو اپنے سینے پر لیا تھا. لیکن میرے ملت کے لوگوں، وہ عاشق حسین ہے، میرے آقا حسین اعظم ہے کہ وہ جو عاشق تھے اس قدر بہادری اور شجاعت کا مثال پیش کیا تھا کہ خیمے حسینی کی طرف ایک بھی تیر و تلوار کو آنے نہیں دیا تھا. حال یہ بھی ہوا تھا کہ لشکر یزید کی طرف سے خیمے حسینی کی طرف تیروں کی برسات کی گئی تھی، تیروں کا وار کیا گیا تھا. پھر بھی تاریخ میں کوئی ایسی بات شاہد نہیں ہے کہ جب تک کہ دوسرا عاشق موجود تھا حسین اعظم کے خاندان کو ایک چھوٹا سا بھی خروچ آیا ہو. میرے ملت کے لوگوں، لیکن اب وہ وقت آ جاتا ہے، اب وہ ٹائم آ جاتا ہے، وہ وقت آ جاتا ہے کہ تمام عاشق ایک بعد دیگرے اپنے بہادری اور شجاعت کو دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں. اب خاندان حسین کے وہ مسلم بن عقیل کے تمام بھائی بھائی وہ بھی خاندان حسین میں خیمے حسین سے اجازت لے کر کے اور کربلا کے میدان میں ان یزیدیوں کے لشکر سے پشتے اڑاتے نظر آتے ہیں. حال یہ ہوتا ہے کہ جب شہید کیے جاتے ہیں، اب آپ لوگ یہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حضرت قاسم آ جاتے ہیں. حضرت قاسم آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، چچا جان مجھے کربلا کے میدان میں ان دشمنوں سے لڑنے کے لیے اجازت دے دی جائے. میرے آقا حسین ہے، حضرت قاسم کو بھی اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے بھتیجے ہو قاسم، ابھی تمہارے باپ کی جدائی کا داغ جو ہے وہ ہمارے دل سے نہیں مٹا ہے. ہم تمہیں کیسے کربلا کے میدان میں دشمنوں کے تیروں تلوار سے چھلنی ہونے کے لیے جانے کی اجازت دے دوں؟ حضرت قاسم فرماتے ہیں، اے چچا جان مجھے جانے کی اجازت دے دی جائے. بہت اصرار کرتے ہیں. اس کے بعد میں حضرت قاسم امام علی حضرت قاسم ہے جو بڑی اصرار کرتے ہیں کہ میرے آقا حسین اعظم ہے. حضرت قاسم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. سینے سے لگانے کے بعد میں گھوڑے پر سوار کرتے ہیں. اب یہ ہاشمی شیروں کا شیر میدان کربلا میں اکیلے پہنچ چکا ہے. حضرت قاسم 19 سال کا نوجوان اب کربلا کے میدان میں گھوڑے پر سوار ہو کر کے ان یزیدی لشکروں کے طرف مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے، اے لوگوں تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسین، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں. میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں. جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہے بھیج دو. آج میں آ چکا ہوں کربلا کے میدان میں. ان دشمنوں کے لشکروں کی طرف سے ایک آدمی خود بیان کرتا ہے کہ جب حضرت قاسم میدان کارزار میں آئے تھے، میدان کربلا میں پہنچے تھے تو آپ کے جسم پہ ایک بھی پیراہن نہیں تھا، بلکہ صرف ایک لباس پہنے ہوئے آپ میدان کربلا میں آئے ہیں. جب حضرت قاسم میدان کربلا میں آئے ہیں تو دشمن کا بیان ہے کہ ایسے لگتا تھا
कि जमीन पर चांद नजर आ गया है, जमीन पर चमकता हुआ चांद आ गया है। मेरे मिल्लत के लोगों, हजरत कासिम ने कहा था कि ऐ लोगों, जिसे तुम्हें हमारे मुकाबले में भेजना है भेज दो। आज शेरे खुदा का शेर मैदान में आ चुका है। तो अमर बिन साद ने अरजक नामी पहलवान से कहा था, ऐ अरजक, तुम बहुत बड़ा पहलवान है, तुम बहुत बड़ा बहादुर है, जा इस बच्चे से मुकाबला करने के लिए चला जा। तो अरजक कहता है कि मैं एक छोटे से बच्चे से मुकाबला करने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए कि मेरा इसके मुकाबले में जाना मेरी तौहीनी है, लोग मुझे मेरी तौहीन करेंगे। एक बच्चा है और उससे लड़ने के लिए मुझ जैसा बहादुर जाएगा, मैं नहीं जा सकता। बल्कि हमारे यहाँ इस मैदान में 4 बेटे मौजूद हैं, उनमें से एक को भेज देता हूँ, अभी 1 मिनट के अंदर जाकर के वो कासिम के सर को काट के ले आएगा। लेकिन मेरे मिल्लत के लोगों, उस अरजक को नहीं पता था कि अभी तक हम औरों से मुकाबला कर रहे थे, आज हम शेर खुदा के शेर से मुकाबला करने जा रहे हैं। मेरे मिल्लत के लोगों, अरजक का बेटा उठता है, सबसे बड़ा बेटा उठता है, तलवार में जहर में बुझी हुई तलवार को लेता है और शेर की तरह चिघाड़ता हुआ मैदान में आ जाता है और पहुंचते ही हजरत कासिम पर तलवार से हमला कर देता है। जैसे ही हमला करना था, हजरत कासिम उसके वार को बेकार करते हैं, उसके बाद में ऐसी तलवार का वार करते हैं कि वो अरजक का बड़ा बेटा उसके गर्दन कट करके 2 टुकड़े हो जाया करती है। अब हजरत कासिम लपक करके और उसके बेटे के तलवार को उठा लेते हैं। उसके बाद में जब तलवार को उठाते हैं, अब अरजक का बड़ा बेटा जब कत्ल कर दिया जाता है, अरजक का दूसरा बेटा अपने बड़े भाई को कत्ल होता हुआ देख करके वो भी मैदान में आ जाता है, इमाम कासिम पर हमला कर देता है।